Hello everyone, today we are going to solve problem based on linear equation in two variables. So first of all we are going to discuss about the simultaneous linear equation. So how to solve the simultaneous linear equation? First of all there is going to be two equation. First we are going to take equation number 1, that is 5x minus 3y is equals to 8, and another equation is 3x plus y is equals to 2. Okay, first of all we are going to write this equation, that equation number 1 and equation number 2. Then 5x minus 3y is equals to 8 is equation number 1, and 3x plus y is equals to 2 is equation number 2. Now if we observe this both equation, we come to know that here there is a 3y and here is a just y. So we have to eliminate just one variable. Okay, number of one variable we have to eliminate. So we are going to multiply equation number second by 3 because we want 3y, positive 3y. So we are going to multiplying equation second by 3. Then what we get? 3x plus y is equals to 2 multiplied by 3. Okay, so we get 3 3s are 9. 9x plus 3y is equals to 6. It's equation number 3. Now simple, we come to know that in this equation there is plus 3y, and in this first equation there is a minus 3y. So we can eliminate this term. Now see here, we are going to add equation first and equation third. Adding equation first and equation third. Now see here, 5x minus 3y is equals to 8 plus 9x plus 3y is equals to 6. 8 plus 6 is equals to 14. This plus 3 and minus 3 get eliminated. 5 plus 9 is equals to 14x. So we get that 14x is equals to 14. Here this 14 is in the multiplied form. When we shift this 14 to this side, it becomes divided. Then x is equals to 14 by 14. Then 14 ones are 14, 14 ones are 14. So x is equals to 1. Now we get the value of x in this equation. We are just going to substitute the value of x in any equation. Okay, तो सिंपल हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और एल्स ये इक्वेशन लेते हैं 9x plus 3y is equals to 16. So we are going to substitute the value of x in this equation. So we have taken the equation 9x plus 3y is equals to 6, and we are going to substitute the value of x where x is equals to 1. So 9 into 1 plus 3y is equals to 6. 9 ones are 9 plus 3y is equals to 6. ये 9 यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. So 3y is equals to 6 minus 9 is equals to 3y is equals to minus 3. अब यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, वहाँ पर जाकर डिवाइडेड फॉर्म में होगा. सो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 1 3 3 1 3, बट y इज इक्वल्स टू माइनस 1. x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 1, एंड वी राइट द कोऑर्डिनेट्स in the form of x and y. So we know that x is equals to 1, x is equals to 1 and y is equals to minus 1. So we are going to write x y is equals to 1. First we are going to write the coordinate of x and then minus 1. So this is the answer. So this was the first method to solve simultaneous linear equation, and there is another method to solve these equations. We are going to discuss about it. Now see here, we have taken the same equation. अभी हम इसी equations को
दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कंसिडर इट एज अ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. 5x minus 3y is equals to 8. 3x plus y is equals to 2. नाउ हम जब ये सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, इट इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. जब हम ये सेकेंड इक्वेशन देखते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यूज़ है, तो हम y की टर्म्स को x के फॉर्म में राइट कर सकते हैं. सो हम y की टर्म्स को x के फॉर्म में राइट करेंगे सेकेंड नंबर इक्वेशन की, दैट y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x. वाई 2 माइनस 3x? बिकॉज y अपनी खुद की जगह पर है, हम उसे चेंज नहीं कर रहे. 2 भी खुद की जगह पर है, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, ये जो 3x है जो पॉजिटिव फॉर्म में है उसे चेंज कर रहे हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं. सो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस. सो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x. अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू इस टर्म में मिल गई है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में इस y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं. सो सिंपल वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, 5x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 8. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू Bodmer's rule. नाउ सी 5x minus 3 2 6 माइनस 6, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर, प्लस. 3 3 9x इज इक्वल्स टू 8. नाउ सी दिस 6, ये 6 यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा. सो सिंपल 5x प्लस 9x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6. देन 5x plus 9x is equals to 14x. Then 8 plus 6 is equals to 14. Then simple x यहाँ पर 14 यहाँ पर मल्टीप्लाइड फॉर्म में यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा. सो 14, सो 14 1 सा 14. सो x is equals to 1. Now simply we are going to find the value of y. We are going to substitute the value of x in this equation and we are going to find the value of y. So what we are going to do here, y is equals to 2 minus 3 into 1. Then y is equals to 2 minus 3 1s are 3. Then माइनस 3 प्लस 2, माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, बट जो बिगर नंबर है 3 की जो साइन है वो माइनस है. सो यहाँ पर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा. सो 1 आंसर आएगा, 3 में से अगर 2 जाते हैं तो, बट बिगर नंबर की साइन क्या है, माइनस है. सो y इज इक्वल्स टू -1. सो हम कोऑर्डिनेट्स को क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 है और y इज इक्वल्स टू -1 है. तो हम x और y ये कोऑर्डिनेट्स को ऐसे राइट करते हैं 1 एंड -1. सो हमारे इक्वेशन सेम है अगर, तो दोनों मेथड से हमारे इक्वल आंसर्स आते हैं. सो दोनों मेथड्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं. ओके, ना सिया हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशंस दिए गए हैं, दैट इज़ 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9. ये इक्वेशन नंबर 1 है. और इक्वेशन नंबर 2, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 2 है. बट जब हम इक्वेशन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इक्वेशन नंबर 1 में भी 3y है और इक्वेशन नंबर 2 में भी 3y है. तो यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, डायरेक्टली इक्वेशंस को ऐड करना है. हमें साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो सकते हैं. सो सिंपल वी आर गोइंग टू ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2. एडिंग इक्वेशन 1 and 2. So 5x plus 3y is equals to 9 and 2x minus 3y is equals to 12. So 12 plus 9 is equals to 21 and 3y minus 3y get cancelled, eliminated, and 5 plus 2 is equals to 7x. Now see here, 7x is equals to 21. We know that ये 7 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा. सो x is equals to 21 by 7. So x is equals to 7 1 7, 7 3 जा
21. So x is equals to positive 3. Now simple, we are going to substitute the value of x in equation number first. We know the equation number 1, that is 5x plus 3y is equals to 9. So we are going to substitute the value of x in this equation. So 5x plus 3y is equals to 9, where x is equals to 3 plus 3y is equals to 9. 5 3s are 15 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9. अब यहाँ पर 15 पॉजिटिव है, वहाँ पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा. देन 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15. सो 9 में से अगर 15 जाते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं 6. बट 6 कैसे हो गए, माइनस हो गए, बिकॉज 15 को यहाँ पर माइनस साइन है, जो बिगर नंबर है उसको माइनस साइन है. सो यहाँ पर माइनस की ही साइन आएगी. सो 3y इज इक्वल्स टू माइनस 6. देन y इज इक्वल्स टू माइनस 6/3, बिकॉज ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. देन y इज इक्वल्स टू -2. नाउ सी आवर फर्स्ट इक्वेशन. एक्सरसाइज में जो सेकेंड क्वेश्चन है वहाँ पर फर्स्ट इक्वेशंस दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में दैट इज 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26 एंड a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22. ओके, ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं ना. सी अब ये दो इक्वेशंस को देखकर यहाँ पर वेरिएबल्स अभी x और y नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल्स अभी a और b हैं. तो ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पर प्लस 5b है और यहाँ पर प्लस 5b है. इस दोनों इक्वेशंस में 5b है, तो यहाँ पर हम सिंपल इक्वेशंस नंबर देते हैं. दैट इज़ 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26 एंड a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22. ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2. बट अभी यहाँ पर देखो, हमें कोई भी एक टर्म को एलिमिनेट करना है. अब यहाँ पर एक टर्म होने की वजह से हमें सिंपल पता चलता है कि अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो यहाँ पर 5b की टर्म क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी. सो सिंपल हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. तो जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे की जितनी भी इक्वेशन की टर्म है वो सभी सब माइनस में हो जाएगी, बिकॉज सबकी साइन चेंज हो जाएगी. ओके, 3a प्लस 5b एज इट इज़ रहेंगे. 26 माइनस a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -22. अब 26 में से 22 अगर जाते हैं तो हमें पता है कितने बचते हैं 4. ये b की 5b की टर्म क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी. यहाँ पर भी कितने बचेंगे 2a. सो वी कम टू नो दैट 2a इज इक्वल्स टू 4. सो a इज इक्वल्स टू 4/2. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. सो a यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 2 है. नाउ सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की जो वैल्यू है उसे इक्वेशंस में सब्सटीट्यूट करते हैं. सो वी आर गोइंग टू टेक दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा सिंपल है. तो जो भी सिंपल टर्म्स है हमें आंसर लाने के लिए वही लेनी है. सो यहाँ पर हम a की वैल्यू 2 इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्सटीट्यूट करते हैं. सो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22. a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22. बट अभी यहाँ पर देखो, ये जो 2 है ये पॉजिटिव है, वहाँ पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा. सो 5b इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2. देन 5b इज इक्वल्स टू 20. अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा. सो b इज इक्वल्स टू 20/5. देन 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20. सो b इज इक्वल्स टू 4. मीन्स हमारी a और b की वैल्यू क्या है, ab is equals to 2 4. Now we are going to take another number. ओके, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू हमें क्या मिली है 2 and 4. अभी हम यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज इक्वल्स टू, इक्वेशंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, दैट इज x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7.
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल इक्वेशंस को नंबरिंग करनी है। x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। 3x माइनस 7y 2y, सॉरी इट्स 2y इज इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर अगर हम 7 को तो 2 में और 2 को 7 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को 3 में कन्वर्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 3। ओके, मल्टीप्लाइंग equation 1 by 3, then 3x plus 7 3 21y is equals to 10 3 30, it's equation number 3। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल हमें पता है कि यहाँ पर 3y भी इक्वेशन नंबर 2 में प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, बट हमें x की टर्म को एलिमिनेट करना है, इसीलिए हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3, subtracting equation 2 and 3. Now see here, 3x minus 2y is equals to 7, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और 3x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 30, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ पर जब हम इक्वेशंस में सब्सट्रैक्शन करते हैं तो नीचे के जितने भी इक्वेशन के टर्म्स हैं वो क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस होगा, ये प्लस का भी क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। अभी यहाँ पर कंडीशंस क्या है, 7 में से अगर 30 जाते हैं तो 30 में से अगर 7 जाते हैं तो कितने हो गए यहाँ पर 23, बट वो भी कैसे हो गए, माइनस हो गए, बिकॉज 30 जो बड़ा नंबर है उसको माइनस की साइन है। सो यहाँ पर अभी कंडीशंस क्या होगी, 21 और यहाँ पर माइनस माइनस, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, बट जो बिगर नंबर है उसकी साइन आती है। सो 2 माइनस 2 माइनस 21 इज इक्वल्स टू माइनस 23, सो इट्स गोइंग टू बी माइनस 23y, और यहाँ पर x की टर्म क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। सो सिंपल वी गेट हियर दैट y इज इक्वल्स टू माइनस 23 अपॉन, ये माइनस 23 यहाँ पर मल्टीप्लाइड फॉर्म में, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस 23 1 ज़ा, सो y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1, and if we are going to substitute the value of y is equals to 1 in any equation, so we are going to get the value of x. okay, सो हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लेते हैं। थर्ड इक्वेशन में हम y की वैल्यूज़ को एलिमिनेट करते हैं, दैट इज़ 3x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 30। यहाँ पर हम y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। सो 3x प्लस 21 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 30, 21 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 21 इज इक्वल्स टू 30 एंड 3x प्लस में होगा। सो यहाँ पर 21 पॉजिटिव है, वहाँ पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 21, सो 3x इज इक्वल्स टू 9, यहाँ पर पॉजिटिव 9 होगा। देन x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड फॉर्म में, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 9 बाय अपॉन 3। देन x इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, देन x इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर कैसे हो गए, x y इज इक्वल्स टू 3 1। पहले हमेशा हम x के कोऑर्डिनेट राइट करते हैं और बाद में y के कोऑर्डिनेट, चाहे पहले हमें y की वैल्यू मिले या फिर x की, बट हमें कोऑर्डिनेट पहले x के राइट करने हैं देन y के। ओके, हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 एंड 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13। तो अभी यहाँ पर हम इक्वेशंस को नंबरिंग करते हैं, दैट इज़ 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर कंपैरिजन करने के बाद पता चलता है 2x ऑलरेडी है, तो हम इसे सिंपली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सब्सट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर देखो हम ऊपर का नंबर लेते हैं बिकॉज ये इक्वेशन हम ऊपर राइट करते हैं, ये बिगर नंबर है। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब जब हम किसी नंबर को या फिर किसी इक्वेशन को माइनस से सब्सट्रैक्ट या फिर किसी नंबर को या फिर किसी इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सबकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो यहाँ पर पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। तो ये टर्म्स है। अब 13 में से 9 अगर जाते हैं तो हमारे पास टर्म्स कितनी बचती है, 4, पॉजिटिव 4। यहाँ पर y प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4y, और ये x की टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर 4y इज इक्वल्स टू 4 है, तो y इज इक्वल्स टू 4/4 होगा। 1 1 जा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब यहाँ पर y की वैल्यू अगर हमें 1 मिली है तो सिंपल हम सब्सटीट्यूट करते हैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। सो हम y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9, देन 2x माइनस 3 1 जा 3, सो इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस हो जाएगा। सो 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12। सो 2x इज इक्वल्स टू 12, देन x इज इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, देन 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो x इज इक्वल्स टू 6। मीन्स हमें यहाँ पर x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हैं, यहाँ पर ये टर्म्स में हमें x और y के कोऑर्डिनेट क्या मिलते हैं। सो x y इज इक्वल्स टू 6 एंड 1। Now next question, question number 4, 5m minus 3n is equals to 19, m minus 6n is equals to minus 7। अब ये इक्वेशंस को हम नंबर करते हैं, that 5m minus 3n is equals to 19, it's equation number 1, and m minus 6n is equals to minus 7, equation number 2। अब यहाँ पर सिंपल हमें कंपैरिजन करने के बाद पता चलता है कि अगर हम ये इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टर्म्स मिल सकती हैं। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 5, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर टर्म, 5m माइनस 6 5 जा 30n माइनस और इज इक्वल्स टू 7 5 जा 35 माइनस 35। तो इक्वेशन नंबर थर्ड हमें मिलता है सेकेंड को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर देखो दोनों सब्सट्रैक्टेड फॉर्म में है, तो हमें क्या करना होगा, एक तो भी इक्वेशन को क्या करना होगा हमें यहाँ पर दोनों एडिशन फॉर्म में है 5m, तो हमें उसे एक तो भी सब्सट्रैक्टेड फॉर्म में करना होगा। सो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हियर 5m minus 3n, वी आर गोइंग टू subtracting इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। सो यहाँ पर 3n इज इक्वल्स टू 19 माइनस 5m, अभी सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं मीन साइन चेंज होने वाली है, यहाँ पर माइनस फॉर्म में जितने भी साइन है वो प्लस हो जाएगी और जितने भी प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएंगे। सो प्लस 30n इज इक्वल्स टू प्लस 35। ओके, अब यहाँ पर ये टर्म्स तो एलिमिनेट हो जा रही है, यहाँ पर कितना होगा 27n, पॉजिटिव 27n, और 35 प्लस 19 कितना होगा यहाँ पर 35 प्लस 19 14 एंड 54। सो यहाँ पर आंसर कितना होगा हमारा 54। सो n इज इक्वल्स टू 54/27। सो व्हाट वी गेट, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। सो n इज इक्वल्स टू 2, वी गेट द वैल्यू ऑफ n दैट इज 2।
यहाँ पर हमें n की वैल्यू 2 मिली है। सो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं कोई भी एक इक्वेशन में। सो हम इक्वेशन नंबर सेकेंड लेते हैं बिकॉज वो ज़्यादा सिंपल है। सो m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7। तो n की वैल्यू हमारी 2 है। सो हियर m माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -7। देन 6 2 ज़ा 12, m माइनस 12 इज इक्वल्स टू -7। अभी यहाँ पर -12 है तो वहाँ पर जाकर पॉजिटिव 12 हो जाएगा। सो m इज इक्वल्स टू -7 प्लस 12 इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू +5 बिकॉज माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन जो बिगर नंबर है उसकी साइन यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम हमारे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।